Assalamu alaikum everyone. As I had briefed you earlier, we have gathered here for an awareness session on cybercrime. So we have our special guest here, our own. He was also the faculty of Ali IAS Academy. First of all, with a big round of applause, let's welcome Muhammad Saeed sir. And we also have the presence of SIO Tumkur Unit President, Mr. Khalil sir. So I also welcome him. And most importantly, we have the presence of the resource person or the chief speaker for today, Aisha ma'am. She is a student in Reva University. So for all our students, she should also be a role model. Reva University is one among the top universities in India or in the world. So getting the admission there itself is a big thing. So she has been studying there, and during her student life itself, we see her contribution towards the society, towards giving the awareness to our students. So Alhamdulillah, when Kaif sir had spoken to me about his interest on arranging the session here in our school, Ali Public School, so we were happy, Alhamdulillah. So finally we had this session arranged based on the date suggested by them and based on our feasibility. So as we always start our session through the Qiraat, so let me welcome our student for Qiraat, Nisar sir. Okay, we have Hafiz Abdullah Danish with us. He is also son of Maulana Yasin Hazrat. So he has become a Hafiz just 2 weeks back. So let's all congratulate him. He is one more Hafiz al-Quran from our madrasa and from our school. He is proud of us. So I hope that you all can become Hafiz al-Quran. Who all wants to be a Hafiz al-Quran? Inshallah. Mashallah. That's a great determination. Okay, let's listen to a Qiraat from Danish. And I request everyone to maintain silence again. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
MashaAllah, that was a melodious qiraat with the very good tajweed and tarteel. Alhamdulillah. So next let's also have a naat. So for the naat, I invite our student Yasir. Yasir, please come on the stage. He is also the district level naat champion. Alhamdulillah. So we want all of you to be the champions in naat and qiraat. Can we all, inshallah? Very good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عهده لليتامى ضيفا حن قلبي له فوضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شعبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء التقى وأتى بالنقى ودا وجهه نير مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال قد تذهبوا وانتم الدلقاء حق दिलदार को शाहे अबरार को मेरे सरकार को सबके गमखार को मेरे सरकार को सबके गमखार को अस्सलाम 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 السلام 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 उनके रुखसार पर जुल्फ़े क़ंदार पर उनकी आँखों में सुरमे की मिक़दार पर उनके कदमों पे और धीमी रफ्तार पर उनके अल्फाज की प्यारी महकार पर उनके अख़लाक़ पर आला किरदार पर उन पे लिखे गए सारे अशआर पर ऐसे औसाफ़ अज़्ज़मत के मीनार पर रोज़ जाऊँ मैं कुर्बाने सरकार पर उन पे पढ़ता रहूँ मैं दरूद व सलाम उन पे पढ़ता रहूँ मैं दरूद व सलाम अस्सलाम 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 माँ की ममताओं को जन्नती पाओ को प्यार की चाह को उम्मती माओ को इश्क के फक्र को इल्म के क़द्र को पैगरे सब्र को बिन्ते बू बकर को नाज बरदार को उनके वंकार को चार के चार को यानी हर यार को उनके अख़लाक़ पर आला किरदार पर चार पर उनके अख़लाक़ पर अस्सलाम 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 मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فوق شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه لسماء التقى عذاب النقى غدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه إن حان اللقاء قال قل تذهبون طلاقا حق दिलदार को शाह अबरार को हक दिलदार को शाह अबरार को मेरे सरकार को सबके गमकार को मेरे सरकार को सबके गमकार को सलाम सलाम السلام 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 السلام. That was a melodious note to start the program with the spirit. Alhamdulillah. So he should also be the role model. He is an inspiration to all of our students because when he has been studying in his graduation, simultaneously he was working as a lecturer or the professor there. So mashallah, that's good. I thought that is something wrong. Last time I took his interview, I said that when you are a student, if you can also be a lecturer, that is not fair. That is something wrong. Then he said about how he started. He said when he was in 10th standard, he was giving the tuition to second PU person and he helped a second PU person to clear a public exam. Then I thought there is no point in talking to him. Mashallah. Let's give a big round of applause to Muhammad Saeed Shah. So he is inshallah the future IAS officer. He is also the IAS coach, being an IAS aspirant. So with a big round of applause, I invite Taif sir and I request him to introduce today's speaker. Let's listen to Taif sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. It's my great pleasure to be on the stage, on the dais with my colleagues, with my friend, and the words what would have we heard from Harry sir, it's not very high pitch. I'm not an extraordinary man. I'm also a common man like you. So Alhamdulillah, it's all about the du'as of people like you and the grace of Allah that we are standing in front of you today. Today we have having the session on cyber security and the cyber crime. When I got to know about these topics and these issues, we have a team in Bangalore. So they used to work on these topics and they just visit many schools and colleges and they aware the students about these problems and the measures to be taken if you are threatening like this. So this is the first program in Tumkur and I'm very proud to say that our Ali Public School and Ali PU College is the first school to having this session. When I got to know about this, first the thing which came to my mind is our school, because it is like an emotion. We have an attachment with this institution. Why? Because the management, the faculties have helped us a lot to promote the social awareness and social programs, and I can proudly say that we have started the social and societal works from this institution, and we are very thankful for people like these people. Give a big round of applause to these people first.
So I just talked to my friend who is sitting in front of you, Miss Aisha Sultana. So she is a certified cyber security technician. I just talked her. Can you give a session in our school, because we are willing your presence in our school. So she agreed. Only in just a fraction of second she agreed, and I'm grateful. I'm very thankful to her also. So when it comes to the introduction of today's guest resource person, Aisha Sultana, she was born and brought up in Gupi near Tumkur. She completed her bachelor's in Tumkur University and College Sri Siddhaganga College of Arts, Science and Commerce in BCA. And now she is studying in Reva University, one of the top universities of India, and she is pursuing Master in Computer Applications, MCA. Along with that, she didn't stop here. Her journey started as a student, and today she is a successful trainer. She is very familiar with the languages like Kannada, Urdu, English and Hindi. She has the computer skills and she is masters in Python, basics of cyber security, C and C++. And she has many certifications, and she is a certificate holder too. She has certifications like Cisco Certified Cybersecurity Technician, Entrepreneurship One, laying the foundation, Information Security and Machine Learning, and so on. Her objective is to spread awareness among the young minds about the digital world, the significance of cybersecurity, to aware about cybercrime. So this is her main motive, and today she has came to us only to generate and to promote her motive and to aware about the problems which is facing by the today's society. Along with that, she is a social service minded human. She is a member of one of the organization, ma'am, which is that? A Vero. It is an organization which secures the wildlife, and they used to aware about the wildlife and the relationship between the human and wildlife. And she has attended many camps. She has lived in the forests, and she has a great experience about wildlife also. So overall, she has developed one of the great personality in which she can serve to the humankind as well as wildlife. So it's my great pleasure to introduce her today. So let's welcome her to this institution. Welcome you. And I'm glad and I'm very thankful to the Ali Public School and Gali group of institutions that they invited me, and they just provided me an opportunity to stand before you to say a few words. Thank you. Jazakallahu khairan, mashallah. That was a beautiful introduction with a short and sweet message. So thank you, Kaif sir. And now it's the time what we have been waiting. I would also request the SIO president if you can also speak a couple of words from about this SIO team and about the Kaif sir and about the guests today. So let's give a big round of applause to Mohammed Khalid sir. Bismillahirrahmanirrahim. So, first of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has granted us an opportunity to sit here. And I would like to thank Ali Public School as well for inviting me and giving me an opportunity to talk. So, today a cyber security seminar is held in this school. So, what I would like to say is, जब एक टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है
तो उसके साथ खराब चीजें भी बढ़ती है। जब एक अच्छी चीज का ग्रोथ होता है तो उसके साथ खराब चीजें भी बढ़ती है। तो आप सहाबा इकराम के भी जमाने में अगर देखें तो बुराइयों को रोकने के लिए सहाबा इकराम को भेजा गया। तो हमारे ऊपर अल्लाह का हुक्म है कि हम जो बुराई है इस समाज के अंदर, इस माशरे के अंदर, उसे हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जैसा एक्सपेंड हो रही है, जैसा ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ उसके बुराइयां भी बढ़ रही हैं। तो उसे केडर करके उसे रोकना भी हमारी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस जो सेमिनार के अंदर बातें होती हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देकर पॉइंट्स नोट करके जाएं, क्योंकि आपको सामने लाइफ में अगर आप टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड को जाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जब मैं सुना कि इधर साइबर सिक्योरिटी का ये हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह केफ भाई ने इधर ऑर्गेनाइज किया। तो पूरा केफ भाई इधर ढूंढे, जो भी चीफ गेस्ट ज़रूरी समझा, आयशा सिस्टर को बुला लेके आया इधर। तो मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं हारिस भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो एक मौका दिए इधर आने का। जज़ाकल्लाह खैर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। MashaAllah. Thank you, Khalid bhai, for that introduction to the topic. So now, before we start the session, I request everyone to maintain silence, and we have to pay 100% attention. If you are not paying the 100% attention to this, maybe you may have to pay the big price later in life. Correct, sir? So the big fitna is ahead. So, with a big round of applause, let's invite today's speaker, Aisha ma'am. So, I request you to come and start the session, ma'am. Okay. Yes. Yes, sure. Boys, can we remove this table? Okay, only two of you. First of all, I will thank Harris sir, Mr. Kaif, Mr. Khalil, and I welcome all of you here. Good morning. नाश्ता करे सभी? नहीं करे? फिर सो गए तब सभी क्या करना तो? सुनती कि सो जाती? सुनती? पक्का? 1 घंटा बैठती? नींद करेंगे सभी? किसके पास फोन है? टैब है। सबके पास फोन है? किसके पास फोन नहीं है? घर में यूज करते नहीं? फ्री फायर खेलती? फ्री फायर और क्या करते हैं? Cyber crime is any illegal activity using internet. Okay. This world we are living in is the physical world, right? The cyber crime, it happens in digital world. Digital world is nothing but social media, phone. Phone is not just a device, or Instagram, Facebook is not just an application, right? It is a complete digital world. Okay? What is digital world? You don't know? Fine, no problem. Cyber crime is any illegal activity, and the cyber security means protecting the data against this kind of activities. You have to remember two terms: cyber crime and cyber security. Okay? Okay, before understanding cyber crime or cyber security, let us know about how important the phone is in our day-to-day life. You can take any sector, including education sector, banking sector, and also for the personal use, phone and data is very necessary, right? Right? दिन में कितने जीबी डेटा चलाती हैं आप लोग? 2 जीबी, 3 जीबी। Yes, enough. Keep silence.
वाईफाई ओके पर्सनल यूज के वास्ते भी फोन बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू स्टोर आइडेंटिटी टू कम्युनिकेट और टू स्टोर इंफॉर्मेशन करेक्ट टू स्टोर डेटा करेक्ट पर्सनल यूज हुआ सबसे क्रूशियल सेक्टर आता बैंकिंग सेक्टर इज अ सेक्टर वेयर cyber crimes are increasing day by day because banking sector is so much of money, right? Bank means money, money means bank. So cyber crime. Huh? What happened? Nothing. What's your name? Please keep silence. Okay. Banking sector is a crucial sector. Many cyber crimes are happen in banking sector. Okay. Fine. Then come to education sector. Cybercrime is not cybercrime. Data is stored in either it may be student data, academics data. Everything is stored in systems, right? We store everything in system, but in traditional sense, we used to store in files like flat files. We used to store in flat files. But now the technology evolved, right? Now we store everything in systems. Correct? Yes or no? Yes, ma'am. Girls? Yes, ma'am. Okay. So, you came to know about the importance of phone, importance of systems or importance of the data in our life, right? टेक्नोलॉजी क्या क्या evolve हो रही है उसके साथ साथ क्राइम भी बहुत evolve हो रहा करेक्ट टेक्नोलॉजी कितना बढ़ रही है कितना अभी आगे बड़े बड़े सका क्राइम भी बहुत बढ़ रहा राइट उसके केसेस भी हम ना बहुत रोज देखने को मिलती राइट सो आज हमें हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी गॉट इट ओके हुआ है I just introduced about what is cybercrime and cyber security. Second is importance of cybercrime and cyber security in our life. Third, we'll see the types. There are various types. Okay. Next is consequences. What are the consequences for criminals and also what will be the consequences for victims? Next, awareness. Awareness is a major thing we are here to learn. Okay. We'll see awareness about cyber crime. Next, the conclusion. I'll. Cybercrime. Cybercrime is a serious issue. As I said, cybercrime is increasing day by day. Right? As technology evolves, cybercrime is also increasing day by day. Correct? How many of you use social media? Like WhatsApp? All of you have WhatsApp, obviously. No one knows Instagram, Facebook, Snapchats. You use Instagram, Facebook, Snapchats, right? You think that these are all just applications. But it is not like that. Instagram, Facebook and Snapchat are not just applications. There are many more. Okay? Next we'll see cyber security. Using some algorithms, we will tackle the problems of cybercrime. Got it? Hello? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Please, I want this session to be interactive session. Okay? I'll ask some questions. You have to answer it at the end of the session. Got it? Okay. We all know about the cybercrime and cyber security. We just knew about it. Next, we'll look about the types of cybercrime. There are many various types of cybercrime. First, we will see about cyber stalking. How many of you know the term stalking? No one? Okay, stalking means teasing. Teasing मतलब छेड़ना. सोशल मीडिया को किसी तो भी छेड़ना हो सकता है और किसी तो भी धमकी देना हो सकता है और सोशल मीडिया को फेक अकाउंट्स बना के आप जानते नहीं फेक अकाउंट्स के बारे में एग्जैक्टली आपके जैसा अकाउंट कौन तो भी दूसरे बना सकती है आपके जैसी आइडेंटिटी किसकी तो भी दूसरी हो सकती है उससे द मेजर थिंग वी हैव टू नो दिस डोंट पोस्ट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक
Don't post your pictures, your identity. Okay? Cyber stalking is someone will be there, criminals will be there who create the identity and pretend that they are you. Got it? बल्ला के क्रिमिनल्स हैं जो कि आपके सकाश आपका इंस्टाग्राम आप प्रोफाइल हैकर को बोले तो आपके सकाश प्रोफाइल बल्ला के जने बनाती, आपके पिक्चर्स भी रहती सेम टू सेम आपके जैसा सका. ओके, सो उन्होंने क्या तो भी गलत काम करे तो सपरकेस वाले को ना तुम्हें देखो कि तुम्हारे पिक्चर्स तुम्हारी आइडेंटिटी सब भी रहती नहीं वहाँ, उन्होंने क्या तो भी गलत काम आपके नाम से करे तो सपरकेस आप करेक्ट. सो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम होते, फेसबुक होते, स्नैपचैट होते. स्नैपचैट तो आजकल बहुत सभी स्ट्रिक्स मेंटेन करती. कौन सा ना स्ट्रिक्स मेंटेन करती नहीं तुम्हें? स्ट्रिक्स मतलब मालूम नहीं? स्ट्रिक्स मतलब हर एक चीज का उठा को पोस्ट करते रहना, फ्रेंड्स को भेजते रहना. इसका मतलब क्या कहते हो, तुम्हें तुम्हारा इंफॉर्मेशन दूसरा को छोड़ को दिया सका हुआ. तुम्हें हर एक चीज जैसे कि अब तो स्ट्रिक्स इतना मेंटेन कर रही, रोज पढ़ते हुए, चप्पल हुए, बसते हुए स्ट्रिक्स मेंटेन करने का क्या है? जब तक वो एक चीज से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तब तक वो वेस्ट कहीं को करना आपको. करेक्ट. और इंस्टाग्राम में बल्ला की जो पोस्ट करती, हर एक दिन पिक्चर्स पोस्ट करती, उसमें आइडेंटिटी भी रहती है. सो अवॉइड दीज थिंग्स. डोंट पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम और फेसबुक और द अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड. आप कैसा उसके अंदर फंसने को जाते हैं आपको मालूम होता है. आपके पीछे कौन कौन आपकी आइडेंटिटी को लेकर क्या क्या करने का आपको आइडिया भी नहीं रहता. समझ रही हैं आप? तो स्नैपचैट में होंगे, डोंट पोस्ट एवरीथिंग, डोंट पोस्ट एवरी डे. कहा तो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा तो एक तो पोस्ट करो. हर एक चीज़ पोस्ट करने की ज़रूरत क्या भी नहीं है. साइबर स्टॉकिंग मीन्स क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स. ओके, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स और मॉनिटरिंग someone or harassing someone, abusing someone. This is called cyber stalking. इससे पनिशमेंट भी बल्ला के ही. पनिशमेंट अंडर सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट. कौन तो भी साइबर स्टॉकिंग जैसा क्राइम करे तो दे विल गेट 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 5 lakhs ऑफ पेनल्टी. ओके, सो इन चीज़ों से तुम्हें भी बच कर रहना, तुम्हारी आइडेंटिटी को भी बचा कर रहना. सोशल मीडिया से आप भी बच कर रहना, आपकी आइडेंटिटी को भी बचा कर चलना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. साइबर डिफेमेशन. अब जून 15 को एक केस हुआ था. बॉलीवुड मूवीज सभी देखती ना वे. रवीना टंडन किसे किसे मालूम? सबको भी मालूम है. उनका एक केस हुआ था. उन्होंने एक सोशल मीडिया यूजर के ऊपर केस करे थे, साइबर डिफेमेशन का केस. साइबर डिफेमेशन का तो सोशल मीडिया को किसके तो भी बारे में गलत न्यूज़ देना, गलत इंफॉर्मेशन देना, जैसे उनके प्रोफाइल को लेकर गलत इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में गलत रूमर्स फैलाना, ये उनके रेपुटेशन को खराब करता. राइट. तो साइबर डिफेमेशन का एक केस हुआ था. साइबर डिफेमेशन से भी बचकर रहना. हमें क्या कि नॉर्मल पीपल हम ना इतना ज़्यादा लेवल तक का इफेक्ट नहीं हुआ तो भी जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज थी, बॉलीवुड पर्सनालिटीज थी या गवर्नमेंट पर्सनालिटीज जो भी रहती, उनको ये चीज़ अफेक्ट करती. राइट. साइबर डिफेमेशन का तो उनके बारे में गलत न्यूज़ फैलाना, ये भी एक क्राइम है. इसका भी ये है क्या, सब हर एक साइबर क्राइम का पनिशमेंट था. तुम्हारे साइबर क्राइम की सीवियरिटी को, तुम्हारे साइबर क्राइम के सीरियसनेस को हर एक क्राइम की भी पनिशमेंट रहती है. फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स आप फन को भी होंगे. डोंट क्रिएट सोशल मीडिया अदर्स सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर फन. आप बल्ला के आप ये एज में बल्ला के जने करती क्या कहते हो, खेल में मजाक में भी बल्ला के जने करती. राइट. है मेरे फ्रेंड का अच्छे अकाउंट मैं क्रिएट करके मस्ती करेंगे, खेलेंगे. नो, दैट इज ए क्राइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, साइबर टेररिज्म मतलब हैकिंग. फर्स्ट पॉइंट, साइबर टेररिज्म मतलब हैकिंग. हैकिंग तो बल्ला की जने को मालूम है, मूवीज में सभी देखते रहती है. कहाँ सभी सो गए? है कि सो गए? फिर आंसर कर रहे नहीं. हैकिंग का तो क्या
What is the meaning of hacking? Hacker. चुराना, डाटा को चुराना, डेटा को चुराती ना। दूसरे की आइडेंटिटी चुराना। ओके? हैकिंग मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस फॉर द कंप्यूटर सिस्टम और डेटा। अनऑथराइज्ड मतलब उनको मालूम नहीं हो सका, किसी भी मालूम नहीं हो सका दूसरे की आइडेंटिटी चुराना, इसा हैकिंग। साइबर टेररिज्म में हैकिंग एक सबसे बड़ा मसला है। हैकिंग मतलब आप इनको कौन जाते हैं देखे रहेगा तो न्यूज़ में कभी देखे ना है। हाँ? स्माइलिंग हैकर। नाम क्या? हमजा। हमजा। हमजा he is a Algerian hacker। इन्होंने क्या करे थे 200 अमेरिकन बैंक्स को हैक करके उनका जो मनी है वो पैलेस्टीनियन चैरिटी को दिए थे। करेक्ट? यू नो अबाउट दिस न्यूज़ राइट? तो हैकिंग बल्ला के अच्छे कामों को भी बल्ला के जने करते मगर ज्यादातर है सो इट इज अ क्राइम। इट इज अ क्राइम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हैकिंग इज अ क्राइम। अगर आपके साथ हुआ तो भी इसके बल्ला के प्रोसीजर्स हैं। आप कैसा वो आपके साथ अगर कौन सा तो ऐसा इंसिडेंट आया तो कैसा आप उसे लेको ये करना, कंप्लेंट कैसा रजिस्टर करना, उसके भी प्रोसीजर हैं। मैं उसे बाद में आपको समझाती हूँ। ओके? हैकिंग मतलब समझ में आया हमें सब आप क्या करको? कौन से टाइप्स हुए अब तक? साइबर ओके। 4 types. नेक्स्ट इज ऑनलाइन फ्रॉड। किसके साथ होता है ऑनलाइन फ्रॉड? पता है क्या होता है? बोलो जरा बेटा। पूरी जगह ऊपर अकाउंट से मनी कट होता है। ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत कॉमन तरीके का साइबर क्राइम। कॉमन तरीके का आप हर रोज ये न्यूज़ देख सकते हैं। आपके कैसर के साथ एक वैसा इंसिडेंट हुआ परसों। क्या हुआ कैसर के साथ इंसिडेंट का? तो उनके जानने वाले आंटी अकेले हैं तो आंटी के अकाउंट से 12,000 रुपए कट हो गए थे। उनके अम्मी। ओके। Yeah, it's my mother. So उनके account में I think she had a balance of 12 to 13K. When she just saw the balance in her phone, it is 0. We don't know who did this. When we complained the bank, they said someone has transferred the money yesterday itself, and we don't know who's that. So now we are helpless. This is what online fraud she is trying to say. Even I am the victim. So be careful. Yeah, ma'am. ऑनलाइन फ्रॉड बहुत कॉमन तरीके का एक साइबर क्राइम है। आपको तो न्यूज़ बल्ला के देखने को मिलते हैं कि इतने पैसे इकट्ठे हो गए, ये होगा वो होगा कर दो। करेक्ट? हाँ। अब एक वीडियो बताऊँ आप सबको। देखते वीडियो। कौन सा सीरियल हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देखी? सबको मालूम है? उसमें बल्ला के इंसिडेंट वगैरह दिखाया जाता है। आपको शायद वीडियो देखी है? Silence, please. Silence. मैंने झूठ बोला था। रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लग रहा है। वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया और फिर उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तुमने 1.5 लाख रुपए उनका खाता में भर दिया। हाँ जेठालाल। तू का भेड़ा है कि काय? भेड़े? अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटला, लेकिन तब मेरी अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको खजाने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अबे ये 1 करोड़ की बात छोड़ो।
और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ। नहीं अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। हमारा सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहाँ जाते हैं, चलो। एक मिनट बेटे, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। साइबर कैफे है कि तुम? सॉरी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। ओके, देखा ना कैसा हुआ ईमेल फ्रॉड का? सबसे कॉमन कैसा होता है तो ईमेल से किसका ईमेल अकाउंट है, सबका ईमेल अकाउंट था, मैसेजेस आती, नॉर्मल मैसेजेस, उसमें आपको लिंक्स आती, ऐसा बल्ला के लिंक्स आते रहती, फ्रॉड लिंक्स। देखे ना, मैं सब भी देखो रहती, उसमें आपको बोलती कि आप इतने रुपए जीती, अगर ये आपके बैंक में विथड्रॉ करना तो पूरे डिटेल्स फिल करो, ऐसा सब भी आता था ना। वे जब तक तुम ना वो सेंडर के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक तुम्हें वो सेंडर को नहीं जानते, तब तक ऐसे लिंक को टैप करो न हो। ऐसे लिंक में खाली वो लिंक में क्या रहता था तो मालवेयर रहता। मालवेयर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ वायरस जो आपके सिस्टम को अटैक हो सकता है। ओके, जब तक आप सेंडर के बारे में नहीं जानते तब तक लिंक को टैप करो न हो। गॉट इट? बिकॉज उसमें मालवेयर रहता, वो आपके सिस्टम को अफेक्ट कर सकता, आपके सिस्टम को हैक कर सकता, आपके सिस्टम में जो भी आपका आइडेंटिटी है, डेटा है, वो सब भी वो उन्हें फेच कर सकता है कर। गॉट इट? सो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से, ईमेल से, टेक्स्ट मैसेजेस होते, कॉल्स भी बल्ला के होते हैं आजकल। कॉल्स आती, ये करो वो करो, पर मैं ऑनलाइन फ्रॉड अब एक कैसा रहता का तो बल्ला के जने पार्ट टाइम जॉब्स को देखते रहती ना। वे ये एज में मतलब आप पीयू को आए के बाद, डिग्री को आए के बाद पार्ट टाइम जॉब होना, अब अम्मी अब्बू देरी सब पैसे बचा रहे नहीं, आपको पार्ट टाइम जॉब होना करके देखते रहती ना। तो ऐसा भी बल्ला का केसेस में होता, मेरे साथ भी हो है। पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में हमें यहाँ वहाँ ढूंढने का शुरू करती, राइट? तब हमें कौन बोले सो बात हमें सुन लेती, कौन से वेबसाइट को भी भरोसा कर लेती, वैसा करे तो भी आप कुछ इफेक्ट बल्ला का होता। उन्होंने आपसे ऐसा, तुम्हें ऐसा करो, तुमने इतने पे करती, तुम्हें एक वेबसाइट रिव्यू करो, एक जरा अमाउंट मिलता करको, वैसा सब भी बोलती है, वो सब भी झूठ। आपको जब तक आप सेंडर के ऊपर भरोसा नहीं करते, सेंडर आपके जानने वाला नहीं रहता, तब तक डोंट टैप एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ लिंक्स। गॉट इट? ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में मालूम हुआ सबको भी? दिस थिंग साइबर हरासमेंट वर्ड मालूम है कि आप लोगों को? अब्यूजिंग, हरासमेंट मालूम है कि नहीं मालूम है? साइबर हरासमेंट मतलब सोशल मीडिया को होंगे, फोन को होंगे, मतलब सोशल मीडिया मेन सोर्स, सोशल मीडिया को किसके तो भी बारे में गलत बोलना, उनको हरास करना, उनको धमकाना। आपके साथ हुआ तो आप भी क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे क्राइम्स को। बस आप भी ये है ना, कॉशियस है ना कि दूसरे के साथ ऐसा मजाक में भी नहीं करना आप। बिकॉज साइबर क्राइम जैसे हेट स्पीच रिलीजियन के ऊपर होंगे, दूसरे रिलीजियन के ऊपर, कास्ट के ऊपर होंगे, सोशल मीडिया को हेट स्पीच मजाक में भी नहीं करना। इट इज ऑल्सो ए साइबर क्राइम। नेक्स्ट, पब्लिक शेमिंग मतलब किसी को भी अब कौन तो अच्छा नहीं दिख रहा था तो उनके ऊपर गलत कमेंट्स करना, इट इज ऑल्सो ए साइबर हरासमेंट। वो भी एक क्राइम। हर एक चीज का मैं बोले सका पनिशमेंट है अंडर द sections of information security. You have to, they will punish you that imprisonment for life. It may be a life imprisonment or it may be a imprisonment up to some years, okay? Or it may be they will put penalty on you, okay? Penalty
आपके क्राइम का मतलब आपका क्राइम कितना सीरियस रहता बल्कि आपको पेनल्टी पड़ती है। आइदर इट मे बी 1 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा पेनल्टी भी होती है। उसके ऊपर क्या होगा तो इम्प्रिजनमेंट मालूम ना, जेल को जा सकती। आपके साथ हुआ तो भी आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, दूसरे के साथ हुआ तो आप ये जाकर उनको बताना है कि कैसा कैसा क्या क्या प्रोसीजर्स हैं ये सब भी टैकल करने का। गॉट इट? Yes, ma'am. अब तक हमें देखे बल्ला के टाइप्स हैं। मैं बहुत कम टाइप्स ये करता हूँ, आप मैं उससे भी बल्ला के टाइप्स हैं। फिशिंग होगा, फिशिंग मतलब क्या कहते हो, फ्रॉड ईमेल्स फ्रॉड मैसेजेस आती ना, वो फिशिंग होगा, हैकिंग होगा, साइबर हरासमेंट होगा, साइबर स्टॉकिंग होगा, ये सब भी क्राइम्स हुए। साइबर क्राइम का तो क्या आपको मालूम हुआ, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या आपको मालूम हुआ। नेक्स्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, विक्टिम के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल लॉस बोले ना, ऑनलाइन फ्रॉड से क्या होता, फाइनेंशियल लॉस होता। और नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मतलब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा मतलब मेंटली आपको डिस्टर्ब होता। क्या ये ऐसा होगा ना, साइबर आपके जैसी प्रोफाइल कौन तो दूसरे बना को आपके नाम को उन्होंने गलत काम करे तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता राइट। सो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाती कि आगे क्या करना, मेरे साथ ऐसा हुआ ना। बल्ला के केसेस देखती हैं, गंदे पिक्चर्स अपलोड करती हैं। हैकर्स क्या करती हैं, आपके जैसा चेक मॉक वीडियो हंदे फोटोज हंदे बना को, स्पेशली गर्ल्स उन्होंने क्या करते हैं, अपलोड कर को आपको पैसे के वास्ते होंगे, आपके ऊपर क्या तो दुश्मनी कर लेने होंगे। दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंटली। यू हैव टू अवॉइड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू अवॉइड पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। Don't post your pictures, your videos, your identity. Just keep it for fun. Don't, post any pictures and don't comment on the videos like who do hate speech, right? Hate speech होने कौन तो भी ऐसा करे तो don't comment on such kind of post. Hate speech किसे तो भी अब इसके बारे में तो भी कौन तो भी गलत बोलते हैं तो उससे जाको मजाक को तो भी तुम्हें कमेंट करना, वो तो भी करना नहीं, वो तो भी you have to avoid such kind of things. Got it? नेक्स्ट आता लीगल प्रॉब्लम। मैं बोली फेक प्रोफाइल्स बना को आपके नाम को आपके आइडेंटिटी के साथ दूसरे क्या तो भी गलत काम करे तो उसका पनिशमेंट किसे होता, ऑब्वियसली आपको होता है। तो वो बोल रही तो लीगल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट मालूम है, सेम आपके सगा कौन तो भी प्रोफाइल बनाए, आइडेंटिटी थेफ्ट, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट सोशल विथड्रॉवल एंड एंजाइटी डिप्रेशन। हमारा इंसान कम वॉल्यूम का इफेक्ट हुआ तो भी जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होंगे, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, बॉलीवुड एक्ट्रेस होंगे और एनी अदर पर्सन, उनका क्या था भी ऐसे चीज़ें आइडेंटिटी थेफ्ट होंगे ये हुआ तो they will withdraw themselves from the society, from the social interaction. Okay? Next. Okay. इतना आपको मालूम हुआ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस विक्टिम को क्या क्या होते हैं आपको मालूम हुआ, फाइनेंशियल लॉस, इट मे बी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एवरीथिंग। बट जो क्रिमिनल है उसको भी बल्ला के पनिशमेंट्स हैं, क्रिमिनल के ऊपर भी बल्ला के पनिशमेंट्स हैं। मैं बोले सका 5 lakhs पेनल्टी और 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और एल्स बोथ। ओके, अब इतना सब आप जानी ना तो इससे आप कैसा बचना। फर्स्ट पॉइंट, इतना सभी क्राइम से आप कैसा बचना। मोबाइल तो हर एक लोग को जरूरी है ना, वे हर एक इंसान को फोन जरूरी है, डेटा स्टोर करने भी फोन होना। आजकल एवरी एजुकेशनल, नॉट ओनली एजुकेशनल सेक्टर, इन एवरी सेक्टर, आइदर इट मे बी बैंक्स, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, large scale industries, small scale industries, everyone is storing their data in the systems, right? Everyone is storing their data in the systems. Systems are so much necessary today. So अब इतना सभी इससे सभी आप कैसा बच सकती हैं करने के जरा स्टेप्स देखेंगे, टिप्स। फर्स्ट इज अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बल्ला के अपडेट्स आते रहती ना, फोन में अपडेट्स होते हैं, एप्लीकेशन के अपडेट्स भी आते रहती ना। अरे नेट बल्ला का चले जाता ना, कहीं अपडेट करना कर को भी हम एक बार छोड़ देती हमें, राइट। अब सिस्टम अपडेट आया तो 1 GB 1.5 GB नेट चले जाता, कहीं अपडेट करना करता मैं बल्ला के बाद छोड़ देती हमें। यस और नो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट योर सिस्टम।
कई को सिस्टम्स अपडेट करना का तो अब आप एक एप्लीकेशन यूज कर रही का तो उसमें एक जरे एरर्स रहती, उसमें एक जरे प्रॉब्लम्स रहती, कंपनी वाले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर को तुमने अपडेट भेजे रहती, करेक्ट? So you have to update the systems, you have to update your applications because अगर आप वो एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करके आपको तो भेजा रहती, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप सिस्टम्स अपडेट करना का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट? So you have to update your systems, otherwise वो लूप होल्स रहती ना, उसमें हैकर्स आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपका डेटा चुरा सकते हैं. So first of all you have to update your systems daily. Got it? Second tip is use secure internet connection. अब secure internet connection मतलब क्या? अब पब्लिक प्लेसेस को जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टॉप हुआ, वहाँ फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता ना, बल्ला के जगह को अब स्कूल कॉलेजेस में भी फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता ना. कॉलेज का वाईफाई तो ओके सिक्योर रहता काफी हद तक, मगर जैसे आपको फ्री वाईफाई मिलता बस स्टैंड्स को, रेलवे स्टेशन को, कौन से तो भी पब्लिक प्लेसेस को, पार्क्स में भी फ्री वाईफाई अवेलेबल रहता. सो वही से जगह है से अरे फ्री वाईफाई मिल रहा ना, बल्ला का क्या क्या की ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मूवीज सब डाउनलोड कर लेंगे, बल्ला का नेट आना, वही से नेटवर्क को कनेक्ट करना नहीं आप आपका फोन. डोंट यूज फ्री वाईफाई इन एनी पब्लिक प्लेस, डोंट यूज फ्री वाईफाई बिकॉज उसमें सिर्फ उसमें आपका नेट नहीं आते रहता आपके फोन को, उसमें वायरस भी आते रहता आपके फोन को, वो कनेक्शन से आपके फोन में वायरस ट्रांसफर हो सकता. सो अवॉइड यूजिंग पब्लिकली प्रोवाइडिंग वाईफाई सिस्टम्स, ऑलवेज यूज सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस. गॉट इट? गॉट इट ऑल ऑफ यू? थर्ड पॉइंट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. पासवर्ड्स तो हमें कई सारे दिन से खाली 1 2 3 4 5 6 ABCD, नहीं तो नेम, नहीं तो क्या क्या देती पासवर्ड्स तुम्हें लगा? डेट ऑफ बर्थ देती, करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड सच काइंड ऑफ पासवर्ड्स. 1 2 3 4 5 ये कॉमन पासवर्ड, कौन हुआ तो भी हैक कर सकती, कौन हुआ तो भी आप अगर 1 2 3 4 5 और ABCD करने का पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट को रखे तो ऑब्वियसली कौन हुआ तो भी ट्राई कर को हैक कर को आपके पैसे काट सकती, राइट? अवॉइड वेरी सिंपल पासवर्ड्स. ओके, वेबसाइट्स हैं पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर करके वेबसाइट है. चल आई शो यू अबाउट दैट. यू वांट टू सी? Okay, wait. So these kind of websites are available publicly. So how secure is your password? अब for example, अब हमें 1 2 3 4 5 दिए, ये 1 2 3 4 5. Enough. So this is showing that this is a very weak password, and to crack that password, it requires 0 seconds. In a fraction of seconds, anyone can crack your identity, right? Anyone can crack your bank account or whatever, right? So don't give such kind of things. Okay, this is a very weak password. Then if you merge alphabets with numbers, that is also a weak password. Don't use your birth dates because बल्ला के अब फेसबुक था, फेसबुक में तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ सब भी फीड करके रहती ना, फेसबुक को इंस्टाग्राम में भी आप आपका डेट ऑफ बर्थ फीड करके रहती, राइट? वो एक डेटाबेस में स्टोर होकर रहता, सो वो भी यूज कर सकती. सो अवॉइड गिविंग योर डेट ऑफ बर्थ और योर नेम और पासवर्ड्स लाइक 1 2 3 4 5 और ABCD. Okay, always give passwords which is mixed with special characters. Do you know special characters? Symbols. What it means? Symbols. Symbols, correct. Symbols जैसे star, hash, ampersand. You know about the special characters? Always give passwords which is mixed with special characters, symbols, and then capital letters, small letters, or numbers. And always keep your password length maximum 8 to 10 digits. Don't keep your passwords only for 5 to 6 digits. Give your passwords like long password. Like give the password like mixture of the numbers and letters. Special characters, capital letters, small letters, and numbers. This is a medium password. Okay. Extend the length. This is a
strong password. So you have to extend your length. You have to keep your password length maximum 10 digits. Okay? Got it, all of you? Avoid weak passwords. Got it? Next, be aware of pop-ups and fraudulent emails. As I have said you that emails and text messages and calls are very common. Don't just click on any link. Don't just click on any link. कौन क्या आपको मैसेज भेजे? Click here to avail your offer. पर मैं शॉपिंग एप्लीकेशंस रहती नहीं, मिंत्रा, अजियो, ऐसे सब शॉपिंग एप्लीकेशंस रहती नहीं, वो भी डुप्लीकेट करके बल्ला के हैकर्स क्या करते हैं? आप ये जीती, आप ये कूपन जीती, आपको 50% 90% डिस्काउंट करके भी बल्ला के मैसेजेस आती, राइट? Avoid such kind of things, okay? Don't just click on anything. Don't just click on anything. First, know about who is sending. It is valid or not. Know about it and then click on that. Next, manage your social media settings. Social media settings मतलब private और public accounts रहती नहीं. Private करने का setting रहता, keep your social media profile private और keep your social media profile public. और एक सारे आपके informations रहती जैसे number, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ऐसे इंफॉर्मेशन से सब भी रहती नहीं. ऐसे इंफॉर्मेशन पब्लिक भी रख सकते हैं आप, प्राइवेट भी रख सकते हैं, करेक्ट? आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब सेटिंग मिलता, करेक्ट? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? ऐसे सेटिंग्स जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, फोन नंबर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे सब भी आप प्राइवेट रखो. आपका सोशल मीडिया अकाउंट रहा तो भी जो ऐसे एक सारी चीज़ें रहती, फोन नंबर होंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, आपका एड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट, वो सभी यू हैव टू कीप इट प्राइवेट. गॉट इट? इसका एक वीडियो है मेरे पास का, ठहरो. नेक्स्ट ये वीडियो जरा ध्यान से देखो, दिख रहा कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? लास्ट में Those who are in the last bench, you can stand up यहाँ है. if you can't see. Only those in the last benches. ओके, प्ले करो. Yeah, what you got in your bag? It's my new heels for graduation. यहाँ क्या कर रहा हमने? उन्हें उसका नाम ये लिया, देखे कि नहीं सुपी? उसका नाम फिक्स करे हमने. ओके, नेक्स्ट देखो उसका सर्टिफिकेशन नंबर. सोशल मीडिया को ऐसे सब भी पोस्ट करे तो आपका नेम लिया, सर्टिफिकेशन नंबर क्या तो भी आप पोस्ट करें, सर्टिफिकेशन नंबर वो भी उन्हें फेच कर सकता. सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक रहा तो, करेक्ट? नेक्स्ट. Good morning, guys. Guess what it is? It's my birthday. बर्थडे का नंबर भी उसे मिला. बर्थडे का नंबर आप पासवर्ड कैसा कर रखे तो वो हैकर्स यूज कर सकती कर को मैं बोली, करेक्ट? नेक्स्ट. बर्थडे, घर का नंबर. Hey, Serena. Yeah? What you got in your bag? Good morning, guys. Guess what it is? It's my birthday. देखो घर, शी इज जस्ट पोस्टिंग हर पिक्चर्स, बट उसके पीछे क्या क्या है देखो. उसके पीछे उसका घर का नंबर, उसके ऊपर ही उसका एड्रेस भी रहता. समझ गए तुम्हें? एड्रेस, आपका लोकेशन, आप क्या तो भी सोशल मीडिया को पोस्ट करते ही वहाँ करंट लोकेशन आप दे सकती हैं, वो भी अवॉइड करना है आपको, करेक्ट?
that is a debit card. He also fetched the debit card pin, right? So क्या है, आप क्या पोस्ट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुत मैटर करता है। उसे वो मालूम भी नहीं रहेगा आपने क्या है, वहाँ उसके पास डेबिट कार्ड है, एंड हैकर इज फेचिंग अ डेबिट कार्ड नंबर, ओके? हाँ देखो क्या क्या हुआ, एड्रेस, डेबिट कार्ड नंबर सभी उन्हें लेकर उसके बैंक अकाउंट से जरा अमाउंट विथड्रॉ करें, राइट? तो आप सोशल मीडिया को क्या पोस्ट करती, आपके आजू बाजू आपके टेबल को क्या है वो भी एक बार ध्यान दे को पोस्ट करना है। उसके बाद आपके सामने मतलब आपके पीछे घर का नंबर होंगे, आपके घर का एड्रेस होंगे, एवरीथिंग यू हैव टू क्रॉस चेक बिफोर अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बार आप अपलोड कर डालने के बाद आप वो इंफॉर्मेशन डिलीट करें तो भी, आपके तरफ से वो इंफॉर्मेशन डिलीट करें तो भी वो एप्लीकेशन के डेटाबेस में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रहता। गॉट इट? सो वो आप डिलीट करें तो भी डिलीट नहीं होता, वो डेटाबेस में स्टोर होकर रहता। गॉट इट? सो यू हैव टू अवॉइड थिंग्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ योर आइडेंटिटी बिफोर अपलोडिंग। गॉट इट? ओके, Where are the stripes coming from? Video. हुआ मैनेज योर ओके, डोंट सेव योर पासवर्ड इन मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग। सबको क्लियर हुआ हमें क्या करता? नेक्स्ट, डोंट सेव पासवर्ड इन ब्राउजर। इसका मतलब क्या? अब क्रोम में ईमेल क्रिएट करते टाइम को पासवर्ड डालते वक्त एक पॉपअप आता, सेव योर पासवर्ड करके ब्राउजर में। किसे मालूम है? मालूम कि सबको देखो है या तो पासवर्ड सेव करते टाइम को ब्राउजर एक जो पॉपअप करता कि सेव योर पासवर्ड करको। Do you know or you don't? Correct. Don't save your password in browser. आपको पिक्चर दिखाना क्यों? पैसा वाला करको दिखाना की बात जानते हैं आप लोग? मालूम मालूम दिखाना। Save your password. ऐसा आता जानती नहीं आप लोग का? ईमेल में, क्रोम में सब ऐसा पॉपअप आता मालूम है? डोंट सेव योर पासवर्ड इन ब्राउजर। ब्राउजर में आप पासवर्ड सेव करें तो आपका ईमेल, आपका गूगल फोटोज में स्टोर करता है फोटोज। गूगल फोटोज में कौन कौन फोटो स्टोर करते हैं? जस्ट एल्बम में नहीं, गूगल फोटोज में स्टोर करने का मालूम नहीं, उसका सब भी एक पासवर्ड से कनेक्ट होकर रहता। आपका ईमेल में गूगल फोटोज करते वो भी ईमेल में स्टोर होकर रहती, आपके कॉन्टैक्ट्स भी ईमेल में स्टोर होकर रहती। जब आप ईमेल पासवर्ड ऐसे ब्राउजर में स्टोर करें तो ऐसे ब्राउजर में खासकर बल्ला का ट्रैफिक रहता, बल्ला के एडवर्टाइजमेंट, बल्ला के लिंक्स आती। ओके, सो डोंट सेव योर पासवर्ड इन ब्राउजर। गॉट इट? नेक्स्ट, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको मालूम है ना? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? मालूम है कि नहीं? सिस्टम्स में, फोन में एंटीवायरस एप्लीकेशन, स्कैनर एप्लीकेशन जो आपके एप्लीकेशन को स्कैन करता, बाद में कैश डिलीट करता। यू नो और यू डोंट नो? यू डोंट नो अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मतलब इट इज एन एप्लीकेशन जो आपके फोन में ऐसा एप्लीकेशंस को स्कैन करता, उसमें वायरस रहा तो उसमें क्या क्या मैलिशियस थिंग है उसे सब भी स्कैन करके आपको बताता, ये फाइल ये मैलिशियस है, ये फाइल में सॉफ्टवेयर है, डिलीट दिस फाइल अदरवाइज यू विल बी हार्म करको। एक सॉफ्टवेयर आते, यू हैव टू डाउनलोड दोस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। पर मैं हमें सिस्टम्स लेने गए तो, लैपटॉप लेने गए तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग से खरीदना पड़ता, मतलब 4,000 और 10,000 रुपीज समटाइम्स देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता। अरे बत्ता कॉस्टली क्या डालना सो सिस्टम्स में करको गला के चले सोच का एंटीवायरस कुछ नहीं डलाते। एंटीवायरस इज एन एप्लीकेशन, यू मस्ट
have to install antivirus applications in your systems. Got it? Next, protect your e-identity. अब हमें वीडियो देखे नहीं, e-identity मतलब क्या? हाँ, डिजी लॉकर किसे मालूम? डिजी लॉकर में हमें सभी स्टोर करती ना, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, यू नो दैट? How many of you know DigiLocker? DigiLocker is a government application जिसमें आपका सब कुछ मिल जाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट से आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू हो को है नहीं, वो डिजीलॉकर में सभी अवेलेबल होते हैं। गॉट इट? वैसे एप्लीकेशन, वैसे ई आइडेंटिटी पर में हमें बल्ला का अब हार्ड कॉपी कैरी करने से ज़्यादा एल्बम्स में आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके रख ले को रहती, पैन कार्ड की फोटो रख ले को रहती, कौन ले जाता बार बार हार्ड कॉपीज करके सॉफ्ट कॉपीज रख ले को रहती नहीं, वो सॉफ्ट कॉपीज रख लेने का एप्लीकेशन भी आप सोच समझ को डाउनलोड करके स्टोर करना है। गॉट इट? प्रोटेक्ट योर ई आइडेंटिटी मतलब सोशल मीडिया में भी आपकी आइडेंटिटी रहती है, करेक्ट? आपका फोटो भी आपका फेस भी एक आपकी आइडेंटिटी, वो मतलब भी कॉपी करको इलीगल एक्शन करे तो आपको हार्म होता, मैं करको पहले से बोली थी ना मैं, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी। गॉट इट? एज आई सेड, डोंट feed your date of birth, don't feed your numbers, okay? So you have to protect that kind of your identity, okay? Next is don't download everything you see. Don't download everything you see मतलब आप एक कौन सी तो भी मूवी देखते रहते, मूवी के बीच में गेम्स का ऐड आते रहता, एडवर्टाइजमेंट आते रहता गेम्स का, मालूम सबको? नेटफ्लिक्स में सब नहीं आता, इसमें दूसरे थर्ड पार्टी एप्स में आता हमें कौन सा तो एक मूवी देखते हैं इस टाइम को, कौन सा तो भी एक गेम का एडवर्टाइजमेंट आता है, वहाँ से भी डाउनलोड कर ले को नहीं बैठना, अरे क्या है गेम इतना अच्छा है, एक बार क्लिक कर डाउनलोड कर देखेंगे। डोंट डाउनलोड सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। क्या देखते हो सब भी, जब तक आपको गारंटी नहीं होता तब तक डोंट डाउनलोड एनी सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। खासकर एडवर्टाइजमेंट में जो आता, पर मैं बल्ला के आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते इस टाइम को भी काफ़ी बार आता, उसके बाद मूवीज देखते इस टाइम को खास कर आता बल्ला के एडवर्टाइजमेंट्स आती, यूट्यूब देखते इस टाइम को बल्ला के एडवर्टाइजमेंट्स आती। हाँ, यूट्यूब, गूगल ऐसे रेप्यूटेड कंपनीज, ऐसे रेप्यूटेड बॉडीज वैसे मैलिशियस लिंक्स को सभी प्रमोट नहीं करते, मगर जो इससे हटकर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस रहती उसमें बल्ला के एडवर्टाइजमेंट्स आती। ओके, सो डोंट डाउनलोड एनी, वो सब मालूम हमें आपका। अब नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट, रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स। हुआ आपके साथ कौन सा तो भी हादसा, या आपके आजू बाजू आपके जान पहचान वाले के साथ कौन सा तो भी हादसा हुआ, तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस? साइबर क्राइम सेल ऑफ योर लोकल पुलिस स्टेशन। हर एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक साइबर क्राइम डिवीजन रहता, साइबर क्राइम्स के वास्ते साइबर क्राइम डिवीजन करके रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो देयर एंड फाइल अ कंप्लेंट, और फाइल अ कंप्लेंट और फाइल अ एफआईआर कर को क्या क्या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कब हुआ, कैसा हुआ, वो सब भी डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपका आधार कार्ड या वो सब भी उनको दिए तो उन्होंने क्या करती है, कौन करे सो क्या करे सो। बाद में बल्ला का न्यूज़ आता ना क्या, वो स्पेशली गर्ल्स को लेको, गर्ल्स के फेस खाली मॉक कर डाल को क्या क्या कि ऐसे वैसे चीज़ें होते रहती, राइट? आप देखेंगे, आप जानते कि नहीं मालूम है, जानते आप लोग? हाँ, तो यू हैव टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर वैसा क्या तो भी आपके साथ कौन तो भी क्या तो भी करे, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज गो टू लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ एफआईआर। नेक्स्ट इज ऑनलाइन पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.government.in इज अ ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल को जाको लॉग इन हो, ऑथेंटिकेट योर आइडेंटिटी। There are several procedures. There are certain procedure to authenticate your identity and report the crime in online portal. ऑनलाइन पोर्टल एक गवर्नमेंट का पोर्टल जिसमें आप आपके साइबर क्राइम जो आपके साथ होता है उससे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी आइडेंटिटी सब भी डालकर यू कैन कंप्लेंट इन ऑनलाइन पोर्टल्स, राइट? अब आजकल तो फिजिकल हमें पुलिस स्टेशन को जाकर कंप्लेंट दिए तो भी उन्होंने क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में आप फर्स्ट कंप्लेंट दो, ऑनलाइन पोर्टल है उसमें कंप्लेंट करो कर को बल्ला के जने बोलती हैं। इनके साथ भी हुआ था, फोन गवेगा था, कलेक्टर सर का फोन गवेगा था, उन्होंने पुलिस स्टेशन को गए तो उन्होंने क्या बोलेगा, तो ऑनलाइन में रजिस्टर करो, ऑनलाइन में आपका कंप्लेंट डालो। क्या हो तुम्हारे साथ हुआ था हादसा, जरा बोलो बच्चा को। See, yesterday I was traveling in bus and I was just kept my phone beside to me. So phone बाजू में था,
बस स्टैंड आया, आई जस्ट लेफ्ट द फोन इन बस एंड जस्ट डिपार्टेड फ्रॉम द बस। ऑटो चढ़ने को सीधा हॉस्टल के पास आ गया। व्हाइल गोइंग आई जस्ट थॉट वेयर इज माय फोन एंड आई डोंट नो कहाँ है मेरा फोन। वंस अगेन आई जस्ट रन अवे। बस अगर मुझे मिल गई तो मेरा फोन जो है मिल जाता, एक उम्मीद के साथ में वहां गया, लेकिन बस नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली द बस वाज गॉन। आई जस्ट रैंग द मोबाइल, वो 2 बार रिंग हुआ, उसके बाद स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। दैट मींस समवन हैज स्टोलन इट। उसके बाद हमें क्या करें, फर्स्ट आई हैव माय बस टिकट। बस टिकट लिया हमने, बस टिकट के बाद हमें डायरेक्ट को कहाँ हो गए, बस के डिपो हो गए। एंड वी जस्ट इन्वेस्टिगेटेड हु वाज द बस ड्राइवर एंड बस कंडक्टर। वहां से हमने उनका नंबर दिए। वी जस्ट कॉल्ड हिम एंड दे टोल्ड दैट द बस इज वेरी रश। बेंगलुरु को पास हो रही बस, वो बस बहुत क्या है, रश है। सो वी जस्ट रिक्वेस्टेड देम, सर प्लीज सर्च इफ माय मोबाइल इज देयर और नॉट। दोनों क्या करें, बस साइड को डाले, सर्च करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माय मोबाइल वाज नॉट देयर, नहीं था मोबाइल। इट्स अ वेरी, तो सिर्फ 2 days बाद लेको, देन ब्रांड न्यू फोन, इट वाज नॉट देयर। So once again we came back and we just got to know we have to complain police first of all. पुलिस के पास गए हमें। पुलिस क्या ये करेगा, तो हमें ऐसे जो थिंग्स रहती, टेक्निकल थिंग्स रहती, लैपटॉप्स रहती, मोबाइल फोन्स रहती, इसे कंप्लेंट तुम्हें देना है तो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड KSP ऐप, कर्नाटका स्टेट पुलिस ऐप। नोट डाउन इट, KSP ऐप को तुम्हें क्या करना, डाउनलोड करना। डाउनलोड करके उसमें आप है ना अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना। कैसा करना, इफ यू हैव द बिल, मोबाइल की बिल है तो वो भी विक्टिम का नाम डालना, ईमेल डालना। उसके बाद आप क्या करना है, तो कहाँ आपकी साथ हादसा हुआ वो तुम्हें लिख को डालना। आप डालने के मामले से आपको एक ऑनलाइन कंप्लेंट आ जाती है। उसके बाद आप सेंट्रल, इसका एक जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से एक CEIR करके एक ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है, CEIR, दैट इज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR करके। इसमें आप ओपन करते के मान क्या आता, स्टोलन और थेफ्ट मोबाइल का कोई ऑप्शन आता, वहां को क्लिक करना। क्लिक करते के मान आपको एक एप्लीकेशन आता, वो एप्लीकेशन में आप क्या करना है, तो मोबाइल का सारा डिटेल्स डालना, आधार कार्ड डालना, ईमेल ID डालना। डालने के माने आपकी कंप्लेंट फिर से एक बार क्या करना, रिपोर्ट करना। एंड आप पुलिस स्टेशन की जो ऑनलाइन कंप्लेंट की कॉपी थी वो भी उसे अटैच करना। वो अटैच करते ही क्लिक करें तो व्हेन यू क्लिक द सबमिट बटन, आप किस में भी वो कर सकते। करते माने जो मोबाइल आपका चोरी हो को है, किसके हाथ भी लगे तो सडनली द फोन विल ब्लॉक। फोन क्या होता, ब्लॉक हो जाता। लियासो वाला आपके फोन को क्या भी करने नहीं छोड़ता। मैं कहीं को ये बात तो तुम ना बोल लूंगा। तो 2 days back my friend just purchased the phone online. ऑनलाइन में बहुत अच्छे और सस्ते को क्या मिलते का क्या करे, ऑनलाइन का एक मोबाइल लिए एंड द सेम फोन वाज स्टोलन। वो सेम जो उन्होंने ये करे थे, लिए थे, वो क्या होगा, चोरी होगा। जो चोरी करया उन्हें मर्डर कर डालिया। क्या करे, मर्डर कर डालिया। मर्डर करया सो उन्हें फोन है सो इनका नाम आया सो आप किनका फोन था ना, उनका नाम आया। सो पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, मर्डर करने हुए इनको पकड़ा। सी दिस इज व्हाट वी हैव टू फेस। अगर उनके पास कंप्लेंट दिए सो कॉपी नहीं रहती तो पुलिस चार्ज मजा नटोरियस मैन, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स हो सकते। कंटिन्यू। ओके, cybercrime.government.in ये आप नोट कर लो कांतो भी। तो यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस इंस्टेड। नेक्स्ट, इसमें अब एक चीज क्या, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का कोई एक सेंटर है, उसमें वॉलंटियरिंग आप भेजा। अगर आप 18+ है तो उसमें आप वॉलंटियरिंग करेगा। वो कैसा पोर्टल का, तो इट इज अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पोर्टल जहां आप वॉलंटियरिंग करके सोशल सर्विस करेगा। गॉट इट, सोशल सर्विस। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, बात करना बंद करो। सोशल सर्विस करेगा तो एकेडमिक्स होंगे, कौन हुआ तभी इसमें एनरोल करको सोशल सर्विस वॉलंटियरिंग करेगा। आपको वहाँ बल्ला के केसेस देखने को मिलती, समझ गए। वॉलंटियरिंग आप यहाँ ये एक एप्लीकेशन में वॉलंटियरिंग कर रही है, एक सेंटर में वॉलंटियरिंग कर रही है, तो आपको बल्ला के केसेस देखने को मिलते हैं। फोन थेफ्ट यहाँ पे, साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट के, उसका प्रोसीजर आपको मालूम होता।
Got it? Next is this one, CERT in. CERT in एक emergency team. Emergency team क्या करती है? You can contact it. इनका वेबसाइट है. If you contact CERT in, ये आपके साथ जो भी क्राइम हो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोसेस करते हैं. ये emergency portal. You can go to this or you can go to this or you can go to this. सबसे safest option है this and this. Okay? यहाँ जल्दी काम होती आप देख सकते हैं. नेक्स्ट साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इज 1930. यू कैन कॉल देम. उन्होंने कॉल फॉर श्योर पिक करती, आपका पूरा डिटेल लेती, आपका पूरा इंफॉर्मेशन लेती, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक कंप्लेंट रजिस्टर करने को, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करती. गॉट इट? गॉट इट? क्या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर? गुड. नेक्स्ट. ओके. अगर अब मैं इतना बोली इतना हुआ, ऑब्वियसली एक हार में एक सेशन में फुल बल्ला का है कंप्लीट करने नहीं होता. साइबर क्राइम का तो क्या, साइबर सिक्योरिटी का तो क्या कर पाओ. अभी आपको बल्ला का सीखने का था, राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो फर्दर अबाउट साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, बल्ला के वेबसाइट्स हैं, कोर्सेरा, यूट्यूब है. यूट्यूब पे तो सब भी मिल जाता है, सबको मालूम. सिस्को करने का एक है, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड करने का, सिंपली लर्न, PDF, ये सब भी क्या कर रहे हैं तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. फ्री एजुकेशन. अगर आपको अब भी इसके बारे में सीखने की चाहत रही तो यू कैन गो हियर, यू कैन गो टू एनी ऑफ दिस वेबसाइट्स, यू कैन एनरोल हियर, यू विल नो मोर अबाउट इट. ये आप करें तो आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती हैं. सर्टिफिकेशंस आप आगे भी यूज, आप अगर जॉब को जा रही तो वहाँ भी आप ये सर्टिफिकेशंस ये करेगा. रेज्यूमे में भी ऐसे ये वेबसाइट से जो सर्टिफिकेशंस आप कर रहती वो रेज्यूमे में ऐड करें तो आपका रेज्यूमे एनहांस होता. सो यू इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो हियर एंड यू कैन लर्न. गॉट इट? गॉट इट? दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन. 11:30 हुआ टाइम. सो हाउ वाज द सेशन? क्या तो नहीं समझ में आया कि क्या तो क्लियर थी आप ध्यान से कि क्या तो समझ में नहीं आया? सोले तो थे कि क्या तक सुने? कैसा था सेशन? 70% अच्छा था. 100% अच्छा था. ओके, चलो सेशन खत्म हुआ.